a death. When in the Garden of Eden, God, Jehovah required the penalty of sin is death. बाग अदन में यहोवा परमेश्वर को उस पाप की सजा मृत्यु देनी थी, And there could be no alterations. और इस दंड में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता था। It could not be any other way taken care of because God is supreme. क्योंकि परमेश्वर सर्वोत्तम है और सिवाय इसके कि मृत्यु दंड दिया जाए और कोई चारा नहीं था। And He is infinite and the judge of all heavens and earth. और वो अनंत है और धरती और आकाश का न्यायी है। The penalty of sin is death. And there was no one who could pay this penalty for another. पाप का दंड मृत्यु है और वहाँ कोई नहीं था जो दूसरे के लिए इस दंड को चुका सकता। For every man, though he might die for another man, but he was guilty to begin with. क्योंकि चाहे कोई मनुष्य किसी दूसरे के लिए अपने प्राण दे भी दे, तो भी वह जन्म से पापी ही है। There was none of us that could help the other, because we were all guilty. हम में से कोई भी एक दूसरे की सहायता नहीं कर सकता था क्योंकि हम सभी दोषी थे। We are born in sin, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. हम पापों में जन्मे, अधर्म में पाले गए और झूठ बोलते हुए इस संसार में आए। And there was not a ray of hope nowhere. और आशा की एक किरण भी कहीं नहीं थी। We were condemned to death by God. परमेश्वर ने हम पर मृत्यु दंड की आज्ञा दी थी And every creature that ever moved on the earth was under this condemnation. और धरती का हर एक प्राणी जो कभी भी धरती पर रहा है वह इसी दंड के अधीन था। There could be righteous men rise and do great things, but he was a sinner to begin with. धार्मिक मनुष्य पैदा हो सकते थे और बड़ी भलाई के काम कर सकते थे, मगर जन्म से सभी पापी थे। There was only one way for it to be paid. That was the death of God Himself. इस सजा को चुकाने का बस एक ही तरीका था और वो था कि परमेश्वर खुद मरे। So God, being a spirit, could not die. परमेश्वर तो आत्मा है, वो मर नहीं सकता, But He came down in a body of flesh and expressed Himself in a life of love. मगर वो एक देह में होकर धरती पर उतर आया और खुद को प्रेम भरे जीवन के द्वारा जाहिर किया। To take all that goodness that He was, and give it willingly as a supreme sacrifice. ताकि अपनी सारी भलाई लेकर अपनी इच्छा से वह एक सर्वोत्तम बलिदान दे सके, That He might take the guilt of the guilty. ताकि वे दोषियों के दोष अपने ऊपर ले सके। All of us being sinners and not a way in the world for us to ever be saved. हम सब तो पापी थे और दुनिया में हमारे उद्धार पाने का और कोई तरीका नहीं था। He came not only to be seen on earth, but He came to die as a sacrifice. वो धरती पर न केवल इसलिए आया कि पहचाना जाए, वरन वो अपना बलिदान देने के लिए आया। Abel expressed it when he offered unto God a more excellent sacrifice than Cain. हाबिल ने यही दर्शाया था कि जब उसने केन से उत्तम बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया, When he brought the little lamb with a piece of grapevine wrapped around his neck to a rock. जब वो एक छोटे मेमने की गर्दन पर अंगूरों की लता लपेटे उसे चट्टान पर लेकर आया, There laid the little fellow up on the rock, pulled its little chin back, उसने उस छोटे बच्चे को चट्टान पर लिटाया, उसकी ठुड्डी पीछे को उठाई and with a rock pounded its little choke, और पत्थर के टुकड़े से उसकी गर्दन तराश दी, and it bleeding and dying and the blood squirting out. और वो तड़प तड़प कर मरने लगा, उसका लहू बह चला This little white rocks become bathed with blood. और वो सफेद चट्टान लहूलुहान हो गई। Abel expressed Calvary there. हाबिल ने ऐसा करके वहाँ सलीब की प्रतिछाया पेश करी थी। When the Lamb of God, slain from the foundation of the world, came to take the place of guilty sinners. जब परमेश्वर का वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से ज़िबा किया गया था, पापियों के बदले कुर्बान होने आया, And was mashed and bruised and scalped and made fun of. तो उसे मारा कुचला गया
उसका हंसी ठट्टा किया गया। Died a death that no creature could die except God Himself. और वे मृत्यु से मारा गया जो परमेश्वर को छोड़ और कोई उस मृत्यु का वर्ण नहीं कर सकता था। And His bloody locks hanging from His shoulders, dripping to the ground. और उसके बाल लहू से तर थे, लहू की बूंदें धरती पर गिर रही थीं। Express what a horrible thing that sin is. वो दिखा रहा था कि पाप कितना भयंकर होता है। When He had to die to redeem man from a life of sin. जब उसे पाप के जीवन से मनुष्य का उद्धार करने के लिए मरना पड़ा, Nothing could die like that. तो उसकी सी मृत्यु कोई और नहीं ले सकता था। Nothing could stand that death. उस मौत के सामने कोई ठहर नहीं सकता था। It said that when they pierced His side, that there came forth blood and water. ऐसा कहा गया है कि जब उन्होंने उसकी पसली में भाला मारा तो लहू और जल की धारा बह निकली। It's been some time ago I was speaking to someone about this. कुछ समय गुजरा है जब कभी मैं इस विषय पर किसी से बातचीत कर रहा था, And it was a scientist that said there's only one way that could have happened. और वो एक वैज्ञानिक था जिसने कहा था केवल एक कारण से ऐसा हो सकता है कि वह मरा। And it was not because of the Roman spear that he died. उसकी मौत का कारण वो रोमी भाला नहीं था, And neither was it the loss of blood that he died because there was still blood in his body. और ना ही खून का बह जाना था क्योंकि उसके शरीर में तो खून तब भी था। What he died of was not because of the Roman spear or the nails that was drove in his hand. वह जिससे मरा वह रोमन भाला नहीं था और ना ही वो कीलें थीं जो उसके हाथों में ठोंकी गई थीं, Or the thorny crown they placed on his head. या वो कटीला ताज जो उन्होंने उसके सिर पर रखा था, But because he died of grief, लेकिन वरन वो दुख और पीड़ा से मरा था। because he came to his own and his own received him not. क्योंकि वो अपनों के लिए आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण न किया। He died of a broken heart वह दिल टूटने से दुखी होकर मरा था। when he knows the very creatures of time that he had died to redeem had spit in his face and he was rejected of man. वह चूंकि जानता था, उसने देखा कि उस समय के जिन लोगों का उद्धार करने वो जान देगा वही उस पर थूक रहे थे और मनुष्यों ने उसे अस्वीकार कर दिया था। David, 800 years before it happened, cried the very voice that he cried at Calvary. 800 साल पहले दाऊद ने वैसे ही पुकारा और कहा था जैसे यीशु ने कलवरी क्रूस से चिल्लाकर कहा, My God, why hast thou forsaken me? हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। What a terrible thing that sin does. It separates man from God. पाप का परिणाम कितना भयानक होता है, वह मनुष्य को परमेश्वर से अलग कर देता है। He was a sin offering that had to be offered for our sin. वह पाप बलि बन गया था जो हमारे पापों के लिए दी जानी थी। And he was separated from the presence of God. Sin had separated him. और वो परमेश्वर की सहभागिता से अलग कर दिया गया था, पाप ने उसे अलग कर दिया था। God placed our sins upon him. And he was separated from God. परमेश्वर ने हमारे पाप उसके ऊपर रख दिए थे और वह परमेश्वर से अलग कर दिया गया था। And that's why he cried, Why hast thou forsaken me? और यही वजह थी कि वो पुकार उठा था, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। And because he was forsaken and had taken this place, और क्योंकि उसे छोड़ दिया गया था और उसने हमारी जगह ले ली थी and seen his people that he would come to be their Savior and to offer their life, they had rejected him. उसने देख लिया था कि उसके उन्हीं लोगों ने उसे अस्वीकार कर दिया था जिनके लिए अपना प्राण देने और उद्धारकर्ता बनने वो आया था। And it grieved him so till he was so broken-hearted until the blood and water, the chemicals of his body separated. और इससे उसे इतना अधिक दुख पहुंचा, उसका हृदय इतना अधिक टूट गया कि उसके शरीर के रसायन, वो लहू, वो जल अलग अलग हो गए। Man will never know what that was. मनुष्य कभी नहीं जान पाएगा कि वो क्या था। That's the reason there could be no one else could ever die like that. यही वजह है कि कोई इस प्रकार की मृत्यु से कभी नहीं मर सकता। I don't care how much that you could be tormented, चाहे आपको कितना भी सता कर मारा जाए, मुझे परवाह नहीं। how that they might put your feet in stocks or saw you by inches or burn you by inches. चाहे कितना ही लोग किसी को इंच इंच करके चीर दें या टुकड़ों में जलाएं,
वह मौत उसकी पीड़ा का मुकाबला नहीं कर सकेगी। You could not die that death. Because your makeup's not like that. आप उस मौत से नहीं मर सकते, उस तरह की मौत से नहीं मर सकते, क्योंकि आपका हिसाब किताब वैसा नहीं है। He had to be God. उसे तो परमेश्वर ही होना चाहिए था, जान परमेश्वर को ही देनी थी। He had to be more than man in the faith that God died. उसे एक मनुष्य से अधिक होना ही चाहिए था, और सोचिए कि परमेश्वर ने जान दी। He died of a broken heart with such grief for the world. वह दुनिया के प्रति दुख से भरकर टूटे हृदय सहित मरा, Until a chemical reaction taken place in his body that could not take place in you. और आखिर में उसकी देह में एक रासायनिक प्रतिक्रिया शुरू हुई जो आपकी देह में नहीं हो सकती थी। You cannot suffer like that. आप उस प्रकार से दुख न उठा ही नहीं सकते। There's no way for you to have that kind of a grief. कोई तरीका या संभावना नहीं है कि आप उसकी तरह से दुख उठा सकें। So there's only one could do it, and he did it. अतः केवल एक ही था जो ऐसा कर सकता था, और उसने वैसा किया। There hanging, that precious life that knows nothing but love and doing good. वहाँ सलीब पर वह अमूल्य जीवन टंगा था जो भले कामों को करने व प्रेम करने के सिवा कुछ भी नहीं जानता था। Hung there between the heavens and earth. वह आकाश व पृथ्वी के बीच टंगा था, Lifted up there, stripped naked, embarrassed. उसे वहाँ नग्न अवस्था में अपमानित रीति से हवा में टांगा गया। Think how you'd be stripped naked. अगर आपको सबके सामने नंगा करके खड़ा कर दिया जाए तो सोचिए आपको कैसा लगेगा। You wouldn't know embarrassment to what God would. आप समझ ही नहीं पाएंगे कि परमेश्वर के लिए ये कैसा बड़ा अपमान था। Hanging there, I know the crucifix has a little thing like they had something around him, but they never did that. वह वहाँ टंगा था। मैं जानता हूँ कि सलीब और उसके चारों ओर लोगों की भीड़ बहुत छोटी सी बात थी, और ऐसा करके लोगों ने उसे मौत नहीं दी। That's just put on the cross, or the artist put it there. ये सब तो हमारी कल्पना में इसलिए आता है कि चित्रकार ने वैसा चित्रित किया है। They stripped his clothes from him, he had on a robe, and they tore off of him and gambled for it. उन्होंने उसके वस्त्र उतारे, उसका चोला था जिसे उन्होंने फाड़ डाला और उस पर चिट्ठी डाली। He was embarrassed to the utmost. उसका अत्यधिक अपमान किया गया, Yet being God had to stand and sinners spit on his face. क्योंकि वो परमेश्वर था। वह फिर भी स्थिर खड़ा रहा और पापी लोग उसके मुंह पर थूकते रहे। Yet being the very depths of modesty, had to die before the public stripped naked. मगर इस पर भी चूंकि वो करुणा का अथाह सागर था, उसे लोगों के सामने नग्न अवस्था में मरना था। Such a peck it took upon him till it separated the water and the blood. उसके ऊपर इन सब बातों का ऐसा असर हुआ कि उसके शरीर का लहू और पानी अलग अलग हो गए। No wonder I think the poet well expressed it when he said, मैं सोचता हूँ कि कवि ने इन पंक्तियों में इसका बहुत अच्छा वर्णन किया है। "Mid rending rocks and darkening skies, my Savior bowed his head and died." अंधियारे आकाश के तले मेरे उद्धारकर्ता ने सिर झुकाकर चट्टानों के बीच उस पहाड़ी पर प्राण दे दिए। But the opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. लेकिन मंदिर के पर्दे के फट जाने से वो पथ प्रकट हुआ जो स्वर्गीय आनंद व अनंत काल में ले जाता है। Sure, he had to do it. यकीनन उसे ऐसा ही करना था। The veil hung between man and God. वह पर्दा मनुष्य और परमेश्वर के मध्य टंगा था, And that opening veil revealed the way to heaven's joys and endless day. और उसके हट जाने से स्वर्गीय आनंद पाने और कभी समाप्त न होने वाले दिन में जाने का मार्ग खुल गया। Calvary means something. Means more than we can express. Sure. कलवरी का अर्थ महत्वपूर्ण है, हम उसकी व्याख्या नहीं कर सकते। यकीनन Living he loved me. Dying he saved me. जीवन जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर मुझे बचाया। Buried he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया। It's been condemned now. Sin has no more hope. उसे दंड मिल चुका है, पाप का अब कुछ अधिकार हम पर बाकी नहीं रहा। When he screamed at the cross, it's finished. जब उसने सलीब से पुकार कर कहा पूरा हुआ, तो सब कुछ पूरा हो गया। Sin died. पाप मर गया, God's dead. आज भी मरा हुआ है। It's done with. It's powerless. It's lifeless.
उसका काम तमाम हो चुका है, वो शक्तिहीन है, जीवन रहित है। Think of it, people. आइए इस बात पर सोचें। That sin, the enemy to human beings, is dead and lifeless. It has no more effect. It can't. कि वह पाप मनुष्य का शत्रु अब मृत और जीवन विहीन है, अब उसका कुछ भी प्रभाव नहीं है, वह अब कुछ भी नहीं कर सकता। One of the sun shut off its vision. The stars would not shine. The earth turned black. It was all being redeemed. जब सूर्य ने प्रकाश देना बंद किया, सितारे नहीं चमक सके, धरती पर अंधेरा छा गया, उस समय उन सब का उद्धार किया गया था। Now it's dead. It's buried. It's lifeless. It has no more life in it than it must be buried. अब वो पाप मृत है, उसे दफन किया जा चुका है, वह जीवन रहित है, क्योंकि उसमें जीवन नहीं, अतः उसे दफन करना चाहिए। What was buried? क्या था जो दफन किया गया? The body of God was buried, for it was the sin offering. परमेश्वर की देह को दफन किया गया, क्योंकि वह पाप बलि था। It was a burnt lamb. It was burned up by the fires of iniquity. वह आग में भस्म किया मेमना था, जिसे हमारे अधर्म की आग में भूना गया। That sinless lamb that knows no sins, that God who knows no wrong. उस पाप रहित मेमने को, जिसने पाप को जाना तक न था, जैसे कि परमेश्वर किसी बुराई को नहीं जानता। His life has been given and there hung the sin offering. उसका जीवन हमारे पापों के लिए दिया गया और वो पाप बलि के रूप में सलीब पर टंगा है। Buried, he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया है। He must be buried. उसे दफन होना ही चाहिए। The body, the sin offering must be buried. वह देह जो पाप बलि के लिए थी, उसे दफन ही होना चाहिए। That's why many after a while will walk one by one to this pool. Amen. To be baptized in the name of Jesus Christ. यही कारण है कि कुछ क्षण बाद बहुत से लोग एक एक करके इस जल कुंड पर आएंगे कि यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा लें। Why? क्यों? Something has took place. कुछ खास बात हुई है। That spirit that came out of that body when he screamed it's finished has condemned sin in our bodies. उस पवित्र आत्मा ने जो यीशु की देह से बाहर आया और जब उसने पुकार कर कहा कि पूरा हुआ, उसने पाप को हमारी देह में मार दिया है। And we must bury it to be remembered no more. और हमें पाप को दफन करना है, उसे फिर कभी याद नहीं करना है। I'm so glad that it is when anything's buried, it's hid. It's out of sight. मुझे बहुत खुशी है कि ऐसा हुआ है। जब कोई चीज दफन करी जाती है तो वो आंखों से छिप जाती है, दृष्टि से ओझल हो जाती है। And buried, he carried my sins far away. दफन होकर उसने मेरे पापों को मुझसे दूर किया। God can see our sins no more, for they are buried. अब परमेश्वर हमारे पापों को नहीं देख सकता, क्योंकि उन्हें दफन किया जा चुका है। They're buried where? In the sea of forgetfulness. उन्हें कहाँ दफन किया गया है? भूल जाने वाले समुद्र में। Think of a sea of forgetfulness. भूल जाने वाले समुद्र के बारे में सोचिए। God cannot remember them no more because they are both dead and buried. परमेश्वर अब हमारे पापों को याद नहीं कर सकता, क्योंकि वो मृत हैं और दफन कर दिए गए हैं। They cannot be remembered no more. उन्हें अब याद तक नहीं किया जा सकता। They're out of God's memory. वे परमेश्वर की स्मृति और याद से परे चले गए हैं। He was also in this burying he represented in the Old Testament. वो खुद भी इस दफन में शामिल था। पुराने नियम में इसके प्रतीक स्वरूप ही भेंट चढ़ाई जाती थी। They had a sin offering at the cleansing of the sanctuary. पवित्र वेदी पर वे पाप बलि चढ़ाया करते थे। And that sin offering was that they taken 2 goats. और उसके लिए वे 2 बकरे लिया करते थे। And one goat was killed. एक बकरे को बलि किया जाता था। And the other goat had the sins that was placed upon the dead goat put upon the live goat. और दूसरे बकरे के ऊपर वे पाप जो उस मृत बकरे के ऊपर रखे गए थे, रख दिए जाते थे। Remember, Jesus was a sheep. He was a lamb. याद रखिए कि यीशु एक भेड़ था, मेमना था। But in this case, he became a goat.
मगर पाप बलि के लिए वो बकरे का प्रतीक था। He was righteousness because he was God, the sheep. वह धार्मिकता था क्योंकि वो परमेश्वर था, भेड़ था। But he became a goat, sin, that he might be the sin offering for me and you. मगर वो पाप बलि यानी बकरा बनकर आया ताकि वो मेरे और आपके लिए पाप बलि दे सके। From a sheep to a goat. वह एक भेड़ से बकरे में परिवर्तित हुआ। And Jesus was represented in both the animals, both goats. यीशु उन दोनों ही बकरों के द्वारा प्रकट किया जाता था। वे यीशु का प्रतीक थे, प्रतिछाया थे। For one he died. He died for the atonement. एक के रूप में वो बलिदान किया गया जो हमारे लिए प्रायश्चित ठहरा। The second, the sins from the atonement was put on the scapegoat. दूसरे के रूप में प्रायश्चित के सारे पाप उस पर लादे गए। And the scapegoat took the sins of the people and went far into the wilderness to bear the sins of the people. और दूसरा बकरा सारे पापों को उठाए जंगल में दूर चला जाता था। What was it? It was the death and the burial of our Lord Jesus. ये किस बात का प्रतीक था? यह हमारे प्रभु यीशु की मौत और उसके दफन होने की प्रतिछाया थी। Dying, living, he loved me. Dying, he saved me. Buried, he carried my sins far away. जीते हुए उसने मुझसे प्रेम किया, मरकर उसने मुझे बचाया और दफन होकर वो मेरे पापों को दूर ले गया।